Good morning everyone. Class 10th. Today we will start chapter 11 constructions. इस चैप्टर से कुछ कोर्स डिडक्ट हुआ है लाइक एक्सरसाइज 1.1 से कुछ, लेकिन मैं आपके बेसिक नॉलेज के लिए फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि ये बेस है। अगर 11.1 एक्सरसाइज आप समझ लेते हैं तो 11.2 एक्सरसाइज में आपको हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्लास लेने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको समझ लीजिएगा और क्या फेरबदल हो जाए आगे एग्जाम में हम नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं। वैसे बहुत सिंपल है एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है एंड वेरी शॉर्ट, सो प्लीज बिल्कुल आप इसको परफेक्ट कर लीजिएगा। अभी तक के जितने भी चैप्टर किए हैं हमने वो सब आपको बिल्कुल नॉलेज में रहना चाहिए। कंस्ट्रक्शन हम प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हैं, क्लास 6 से हमने कंस्ट्रक्शन किया है। वी यूज these geometrical instruments. This is ruler or scale, this is compass, and which has two needles will known as divider, and there are two triangle shapes, they are known as the set square, and one more instrument we use for to draw the angle or measure the angle, it is known as protractor or D. Then you are familiar from these instruments. So come on, we start exercise 11.1. Question number first. I will not write the steps of construction. You just see your book and take the help of the example for writing the steps of construction. Only those statements you have to note down which we are doing during the construct the diagram. Then question number first is that, and you have to solve the example also. This is very good for you also. Question number first, draw a line segment of length 7.6 centimeter. Given a line segment AB, suppose. Given, we are giving the name, suppose a line segment AB is 7.6 centimeter. And dividing the ratio 5:8, divide it into 5:8. Measure two parts and measure दोनों parts को measure करना. See how we will divide this line segment. 5:8 है, then firstly 5 plus 8 is equal to 13 parts. क्यों लिखा है मैंने अभी आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 7.6 सेंटीमीटर। सी हियर, सपोज दिस इज लाइन सेगमेंट AB which measure is 7.6 centimeter. Got it? Now you have to draw another line segment like just form an acute angle like that, it is known as the AX and extend it more. क्योंकि वो जो मैंने 13 लिखा है इस पर हम किसी भी रेडियस से 13 कट करेंगे. The name of this line segment is AX. Now we use this compass and take any radius of an arc and cut the 13 arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. We extend it more. Here we will give the name as
and we mention the name as A1, A2, A3. Firstly, I will write AA. Now I will write down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. A13 join to B in that case. Okay? A13 join to B. अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है A13 पर, वही एंगल हमको 5:8 में तो A5 पर फॉर्म करेंगे, बनाएंगे ये एंगल इसके इक्वल। तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने से लाइन क्या होगी? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन होगी तो ये 5:8 में ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी। तो हमको A5 पर सेम एंगल बनाना है। हाउ वी विल फॉर्म इट? सी, we have to take an arc of any measure and with center A13 cut it like in that manner. Okay, with the same arc take any center as A5 and cut the arc in that manner, and now measure this angle. See, we have measured this angle like that, and from this intersecting point cut the measure of angle in that manner. Okay beta, the pencil will be sharp and join this intersecting point to A5। और जब आप ज्वाइन करें इसके रखें तो ये ध्यान रखें कि ये जो विड्थ है ये सेम लिखनी चाहिए। अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है तो आप सेट कर लें, क्योंकि ये 100% इक्वल ही आएगी और ये पैरेलल दिखना चाहिए। दिस इज C, we give the point C. So therefore justification AC ratio CB is equal to 5:8। ये देखिए 5 पर है तो 5:8। Now on measuring, now you will write on measuring AC is equal to जो मेजरमेंट आया वो लिख दीजिए, and now CB or BC, we can write here CB or BC is equal to जो AC का मेजर आएगा उसको आप डायरेक्ट ये कितने सेंटीमीटर की लाइन थी 7.6 से माइनस कर देंगे। तो ये BC आ जाएगा। अगर मेजर की हुई आपको और ये सेंटीमीटर में आपको यूनिट लिखना, ये आपको लिखना। Do you understand? That is, we have divided a line segment 7.6 in 5:8। ओके बेटा, आप बार बार ये वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। Now we start question number 2। C, स्टेप्स आप ये फेयर कॉपी में करना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, जरूरी क्या है। 5 और 6 लाइन्स लिखेंगे आप। Now question number 2। I will read the question. See, page number 220। Construct a triangle of side 4 cm, 5 cm and 6 cm. Given sides of triangle 4, 5 and 6 cm. Okay? You will write sides of a triangle are 4 cm, 5 cm and 6 cm। कुछ भी नेम दे सकते हैं, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर।
and then a triangle, and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. इस मेजरमेंट का हमको एक ट्राइंगल बनाना है और इसी के सिमिलर एक दूसरा ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड क्या होना चाहिए, 2/3, हर साइड 2/3 रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम। फर्स्ट वी हैव टू ड्रा द गिवन मेजरमेंट्स ट्राइंगल। कोई भी साइड आप बेस में ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर बेस में ले रहे हैं सपोज। वी हैव टू ड्रा अ लाइन सेगमेंट और सिमिलर ट्राइंगल को क्या बनाना है, सिमिलर ट्राइंगल की साइड क्या होगी, 2/3 है ना, यही है ना 2/3, यस। ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर। लेट AB is equal to 6 centimeter, BC is equal to 5 centimeter and AC is equal to 4 centimeter। ऐसा हमने मेजर कर लिया। We have to draw AB 6 centimeter, this is AB 6 centimeter। Now take an arc of radius 5 centimeter, see with center B, because BC is 5 centimeter, cut an arc here। Now we take an arc 4 centimeter like that with center A, cut here, okay। अब ये arc मेरा I will explain it like that in that manner। This point is known as the C। Now join BC and AC। The measurement of this sides over, this is 5 centimeter and this is 4 centimeter। We have drawn a triangle। अब हमको क्या करना है, जैसा उस लाइन में हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था, same we draw an acute angle, draw a line AX in that manner, okay बेटा। अब जो फ्रैक्शन दी जाए उसमें जो बड़ी डिजिट है आप उतने आर्क कट कर दीजिए, जो भी फ्रैक्शन हो आप 2/3, 7, 5, चाहे वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर, आपको कांस्टेंटली ये देखना है कि जो फ्रैक्शन में बड़ी डिजिट है उतने आर्क आपको कट करना है। ये जो हमने एक्यूट एंगल बनाया इस लाइन सेगमेंट पर, कोई भी रेडियस का आर्क लें और 3 आर्क कट कर दीजिएगा आप, 3 आर्क, 1 2 and 3। Now we have to give the name like that, A1, A2, A3, A1, A2 and A3। Join A3 to B with the help of scale, see। Now we have to need 2/3। अब ये A2 सेकंड लाइन पर जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल हम यहाँ बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देन दीस लाइंस विल बी पैरेलल और फिर यहाँ से हम इसी एक्यूट एंगल को यहाँ बनाएंगे तो ये लाइन पैरेलल, तो ये ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगा, सी। Now take an arc of any radius with center A, cut an arc। कोई भी रेडियस का एक आर्क लेकर सेंटर A पर कट किया हमने, यही आर्क A3 के बाद A2 पर लिया, क्योंकि इसके मेजरमेंट का बनाना है। अभी ये मेजरमेंट में रफ कर देता हूं है ना, तो क्या आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ओके। नाउ मेजर दिस एंगल, we have measured this angle और यहां से इसको सेंटर लेकर आर्क को सेंटर लेकर, ठीक। अब join this intersecting point to A2 और ये बिल्कुल इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन आना चाहिए। अगर कहीं भी आप
कम ज्यादा कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी पेंसिल की मोटाई की वजह से मिस्टेक हुआ है। दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज गिवन एज बी डैश, इस पॉइंट को हम बी डैश नाम देंगे। अब यहाँ जो बी पर एंगल बन रहा है वही बी डैश पर बनाना है। इसके लिए भी हम वही प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे जो भी हमने यहाँ किया था। ये जो दोनों एंगल सेम बनाए थे, ये एंगल बना हुआ, इस पर भी एंगल। फिर कोई भी रेडियस आप लीजिए, हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, बस ये दोनों टाइम पर सेम आर्क कटना चाहिए। बी को सेंटर लेके हमने एक आर्क कट किया। ओके बेटा, विद सेंटर बी डैश वी हैव टू कट अगेन दिस आर्क। ठीक, अब ये एंगल को मेजर कर लीजिए आप, मेजर द एंगल एंड विद द सेम आर्क विद सेंटर इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड कट द आर्क। ओके, अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी डैश से ज्वाइन कर दीजिए, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और ये दोनों, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन के पैरेलल आना चाहिए, बीसी के, सी। ओके, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। सी है, ये बी डैश नहीं यहां लिख देता हूं, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज सी डैश, और ए पर ही आपका ए डैश भी आ जाएगा। देन therefore triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C dash according to side method. It is clear. Okay, इस तरह से हमको कंस्ट्रक्ट करना है। The question number third will be same. Question number third में भी आपको सेम ऐसा ही करना है। Question number third we have given construct a triangle with side 5 cm, 6 cm and 7 cm. एक ट्राइंगल बना लीजिए रिस्पेक्टिव साइड्स का, and then another triangle whose sides are 7/5. इसमें सेकंड वाले में है 7/5, तो आप कितना आर्क कट करेंगे? 7 आर्क कट करेंगे, और फिर 7 से लास्ट को अपन बी से ज्वाइन कर देंगे, एंड देन सिमिलर एंगल कहां पर बनाएंगे? 5 पर। कहां पर बनाएंगे? 5 पर, तो आपका सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह आपको ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करना है और एग्जांपल करना है। ये मैंने आपके नॉलेज के लिए दी, ट्रायंगल बनाकर सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सभी पूरी एक्सरसाइज 7 तक के क्वेश्चन सेम है, आप प्रैक्टिस कीजिए। कल हम 11.2 करेंगे, जो हमें करना बहुत जरूरी है। मैंने क्वेश्चन बता दिया, चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजरमेंट वी हैव गिवन द ट्रायंगल इज 5, 6 and 7. Suppose AB is 5 cm, BC 6 cm, AC 7 cm. जो सबसे बड़ी साइड है वो बेस में लेंगे। ओके, कौन सी भी साइड ले सकते हो, हमने AC बेस में 7 cm। AC. Now, again, we firstly draw the triangle. BC is 6 centimeter. Then we have to take an arc. BC is 6 centimeter. C points are the BC 6 centimeter. And AB is 5 centimeter. AB is 5 centimeter. This is AB, 5 centimeter. The intersecting point we will give as the name as B. Then BC was 6 centimeter. And AB was 5 centimeter. Got it? अभी मेजरमेंट में नहीं लिखना। This was the 7 centimeter. This was 6 centimeter. This was 5 centimeter. Now again,
Draw a line segment like a acute angle and take any arc and cut the 7 arc. Because we have given the similar triangle, we have to draw the measures. Sides are 7 upon 5. 7 upon 5. Sides we have given 7 upon 5. देखिए यहाँ बड़ी डिग्री डिनोमिनेटर में थी, तब भी हमने 3 आर्क काट के न्यूमरेटर में तब भी हम 7 आर्क कट करेंगे. Take an arc of any measurement and cut the 7 arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And give them name A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. Join A7 to C. Like that. Now we take the 5. A5 पर हम आर्क कट करेंगे जो कि इसके सिमिलर होगा. We have to take an arc of any radius और A5 सेंटर लेंगे हम. पहले तो इस पर A7 पर हम आर्क कट करेंगे. Like that. यही आर्क हम A5 पर कट करेंगे. Now you make the angle and from this intersecting point cut here and join the line. These 2 points we have to join. Okay, beta. And this will be C dash. Now with center C dash, construct an angle which is equal to angle C. Again, take an arc of any measure और C पर जो एंगल बना हुआ है, आप इस पर कोई भी थोड़ा मैंने आर्क बड़ा कर लिया ताकि सफाई से बने. या आर्क ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही कट होना चाहिए, है ना. और यही आर्क यहाँ से भी आप कट कर दीजिए. अब इसको एंगल को मेजर कीजिए. Now measure this angle. Sorry. And join them. ये साइड और इस साइड की विड्थ इक्वल होना चाहिए. इन आर्क कटने में थोड़ा डिफरेंस हुआ है. ये आर्क एक्चुअली यहाँ कटेगा और जाएंगे ऐसा, है ना बेटा. ये तो ये विड्थ और ये विड्थ इक्वल होना चाहिए, तब सेम रेशो में जाएगा जैसे यहाँ और यहाँ की सेम, है ना. और ये आपका ये 5 सेंटीमीटर थी पहले की साइड, और ये अब आपका बी डैश, ये बी है तो बी डैश यहाँ ए पर ही ए डैश है. ठीक है. अब A dash, B dash, C dash is the similar triangle of A, B, C. इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है. Okay, thank you very much. This exercise was knowledgeous for you. Thank you.